عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 12ویں جماعت کی اردو کلاس ہے۔ آج ہم مجتبیٰ حسین کے لکھے ہوئے ایک مزاحیہ مضمون یونیسکو کی چھتری کا مطالعہ کریں گے۔ یہ بنیادی طور ایک سفر نامہ ہے جس کا نام جاپان چلو ہے۔ تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 83 کھول کر دیکھیں۔ کیونکہ مصنف نے اس مزاحیہ مضمون میں ٹوکیو میں جو 35 دن گزارے، انہیں وہاں ایک چھتری دی گئی جو انہیں بار بار بھول جاتی تھی۔ اس کو ڈھونڈنے کے لیے، واپس لانے کے لیے کئی جگہوں پر دوبارہ جانا پڑا۔ اس طرح کل خرچہ 5000 روپیہ 5000 ین ہوا، حالانکہ چھتری کی اصلی قیمت صرف 1000 ین تھی۔ اس چھتری کی وجہ سے اس کو اپنی بیوی کے ساتھ غلط فہمی ہوئی اور ساتھ ہی بہت وقت ضائع ہوا۔ جاپان میں پوری طرح سیر سپاٹے کا موقع نہ آیا۔ تو ہم اس سبق کا یہاں خلاصہ بیان کریں گے۔ کیونکہ مصنف مجتبیٰ حسین جاپان کے سفر پر جاتے ہیں اور وہاں سے اپنی بیوی کو ایک خط لکھتے ہیں۔ دوسرے ہی دن کہتے ہیں کہ وہ مجھے مل گئی، لیکن خط میں وہ چھتری لکھنا بھول جاتے ہیں اور ان کی بیوی اس کو کوئی خاتون سمجھتی ہے۔ رات 1:30 بجے فون کرتی ہے اور کوستی ہے، برا بلا سناتی ہے کہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ مصنف اپنی نیک نیتی کا ثبوت دیتے ہوئے لاکھ سمجھاتے ہیں کہ یہ یونیسکو کی چھتری ہے جو وہاں انہیں مندوب ہونے کی حیثیت سے دوسرے دن ملی۔ لیکن مصنف کی بیوی کا شک دور نہیں ہوتا ہے، غصے سے فون کاٹتی ہے۔ حالانکہ اس کو 200 روپے کا بل چڑھتا ہے اس فون پر بھی۔ مصنف کو اپنی بیوی کے ساتھ کوئی اہم بات کرنی تھی، لیکن اس کی بیوی فضول باتوں میں الجھا کر فون کا بل جاری رکھتی ہے اور مصنف اس صورتحال سے پریشان ہوتا ہے۔ تو مصنف کو اس چھتری کا بھولنا، اس کا خرچہ، اس کی وجہ سے جاپان میں پریشان ہونا، واپس آ کر بھی، ہندوستان میں رہ کر بھی ہمیشہ کے لیے یاد رہا۔ تو اسی لیے اس سفر نامے میں اس نے ایک عنوان کے تحت یونیسکو کی چھتری کہانی لکھ کر اپنی یاد کو سپرد کرتاس کر دیا۔ یہ چھتری مصنف کو ٹوکیو میں یونیسکو کی عہدیدار مس جو نے دی تھی۔ دیتے وقت کہا تھا کہ یہ چھتری یونیسکو کی ملکیت ہے، اس لیے جاپان سے چلے جانے کے وقت اسے واپس لوٹنا ہوگا۔ وجہ کیا تھی کہ ٹوکیو میں کثرت سے بارش ہوتی ہے، لہذا وہاں چھتری ہمیشہ ساتھ رکھنی پڑتی ہے۔ اس کے برعکس مصنف کا تعلق اس ملک سے ہے جہاں بارش کم ہوتی ہے۔ مصنف چھتری ساتھ رکھنے کے عادی نہیں تھے، اس لیے بار بار بھول جاتے۔ کانفرنس کے روم میں ایک دن زور کا جھٹکا آتا ہے۔ یہ جاپان کے باشندوں کے لیے عام سی بات ہے، لیکن مصنف چھتری چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ایک جاپانی انہیں پکار کر کہتا ہے کہ زلزلوں کے وقت یہاں چھتری چھوڑ کر بھاگنا منع ہے۔
सेमिनार के दूसरे रोज़ दूसरे मंदोब भी हरासा थे, लेकिन श्रीलंका के मिस्टर जिया कोडी कुछ ज़्यादा ही खौफजदा हो गई। उन्होंने घबराहट में छतरी खोल दी। जल्जले का झटका थमा तो मुसन्निफ मिस जो से कहता है कि हमें आसमानी बलाओं से कोई डर नहीं, हमें ऐसी छतरी दीजिए जो ज़मीनी बलाओं से हमें महफूज रखे। जापान तरक्की याफ्ता मुल्क है, आपने ऐसी कोई छतरी ज़रूर ईजाद की होगी जो ज़मीनी बलाओं से हमें महफूज रख सकती है। इस पर मिस जो मुस्कुराते और चले जाते हैं। मुस्लिम को जापान देखने का बहुत शौक़ है, लेकिन उसका ये शौक़ पूरा नहीं होता है, इसलिए कि छतरी की वजह से उनको हमेशा एक मुकाम पर 2 बार जाना पड़ता। एक बार इस मुकाम को देखने के लिए और दूसरी बार भूली ही छतरी को वापस लाने के लिए। जापान की ज़नाना यूनिवर्सिटी में भी 2 बार गई। एक मरतबा वहाँ इनका खैरातम होने वाला था और दूसरी बार छतरी को वापस लाने के लिए। अगर थाईलैंड की मंदोब मिस प्रेनिका का ख्याल है कि मुस्लिम जानबूझकर वहाँ छतरी छोड़ आई थी ताकि दूसरी बार जाने का मौका मिल सके। मुस्लिम दूसरी मरतबा इस छतरी को वहीं छोड़कर जा रही थी। अलबत्ता यूनिवर्सिटी के एक ओहदेदार ने उनको याद दिलाया कि वो अपनी छतरी भूल रहे हैं। मुस्लिम जहाँ भी जाते हैं छतरी भूल जाते हैं, फिर इसको वापस लाने के लिए काफ़ी दौड़ धूप करनी पड़ती। इस बागम बाग में एक बार देखा कि इनके कमरे में एक नौजवान जोड़ी ने कब्जा कर लिया। इस छतरी की वजह से मुस्लिम को बहुत खिपत और रसवाई उठानी पड़ी। रात को अचानक नींद खुल जाती है और छतरी तलाश करने लगती है, यानी ये छतरी इसके लिए बारगाह बन गई। एक बार छतरी को स्टैंड में भूल गई और स्टैंड की कुंजी घुमा दी। स्टैंड वाले को फाजिल कुंजी का इस्तेमाल करना पड़ा। इस छतरी की वजह से दूसरे लोग भी परेशान होते थे। यहाँ तक जब सब मंदोबीन गाड़ी में बैठते तो ड्राइवर पूछता, मिस्टर हुसैन की छतरी आ गई क्या? इस तरह मुजतबा हुसैन ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती थी। जापान में अगरचे बारिश बहुत होती थी, ताहम इन 35 दिनों में सिर्फ 2 मरतबा बारिश हुई। एक बार बारिश हुई तो मुस्लिम को छतरी खोलनी नहीं आई। एक जापानी की मदद हासिल करनी पड़ी। फिर जब छतरी बंद करनी थी तो बंद करना ना आया। इस तरह रसवाई हासिल हुई। छतरी को दोबारा वापस लाने के लिए मुस्लिम को बड़ी रकम खर्च करना पड़ी। एक बार बाजार में छतरी की कीमत पूछी तो मालूम हुआ कि 1000 येन की है, जबकि इस छतरी को दोबारा हासिल करने के लिए टैक्सियों और ट्रेनों में 5000 येन खर्च हो चुके थे। इस तरह मुस्लिम इस खर्चे का तखमीना लगाकर इस बात का एहसास दिलाता है कि ये छतरी कितनी बारगाह बन गई। मुस्लिम छतरी साथ लेकर बेशुमार जगहों पर गई। वो योकोहामा, ओमिया, नारा, क्योटो गई और हर जगह छतरी भूल गई, लेकिन हर जगह ये उन्हें वापस मिलती गई। जापान में आम मकामात पर छतरी रखने के स्टैंड बने हुए हैं, जब छतरी रखने के बाद ताला भी लगाया जा सकता है और चाय भी अपने साथ दी जाती है। लेकिन इन 35 दिनों में कायम जापान के दौरान मुस्लिम को सिर्फ 2 मिनट के लिए ये छतरी ज़रूरत पड़ी। तो इस तरह जापान के कानून की पाबंदी करते हुए लाजिम था कि छतरी साथ रखी जाए। हाँ, एक मुस्लिम को जापान देखने का जो शौक़ था, इस छतरी के भूल जाने की वजह से पूरा नहीं होगा। हिंदुस्तान लौटते वक्त मिस जो मुस्लिम से कहती है कि अब आप हिंदुस्तान में अपनी बीवी को वैसे ही साथ रखिए जैसे आप यहाँ इस छतरी को साथ रखती हैं।
मिस जो छतरी के मस्ट से वो टेप छील देती है जिस पर मुसन्निफ का नाम लिखा है। यानी पहले दिन छतरी के साथ मुसन्निफ का नाम लिखा गया था। मिस जो छतरी के मट से वो टेप छील देती है जिस पर मुसन्निफ का नाम लिखा है। मुसन्निफ के दिल पर बिजली सी गिरती है, वो तड़प कर बोल उठते हैं, मिस जो इस छतरी पर से हमारा नाम ज़रा आहिस्ता से निकाले, दिल पर जो ठेस पड़ रही है। मुसन्निफ सचमुच रो पड़ते हैं। हिंदुस्तान वापस पहुंचने के बाद भी मुसन्निफ इस छतरी को नहीं भूलते, उसे याद करते रहे। छतरी सौंपते सौंपते मुसन्निफ को बहुत दुख हुआ। मुसन्निफ इस छतरी की यादें लेकर वापस हिंदुस्तान आते हैं और समझते हैं कि उन्होंने गोया जानबूझकर वो छतरी जापान में छोड़ दी है ताकि वो इसे लेने के बहाने फिर जापान जा सके। मुस्लिम उम्मीद करते हैं कि वो एक दिन फिर जापान जाएंगे। इस तरह इस सफ़रनामे का जो मज़ाया कहानी है खुलासा मुकम्मल होगा। इसके बाद अब इस सबक की चंद मुहावरे हैं, मुहावरात हैं जिनको मायने लिखना है और जुमलों में इस्तेमाल करना है। गुन गाना, तारीफ़ करना। अहमद अपनी लाडली बेटे की हमेशा गुन गाता रहता है। रस्सी जल गई पर बल न गया, अपनी आदत पर अड़े रहना। जावेद हमेशा अपनी आदतों को नहीं टालता या अपनी आदत नहीं छोड़ता। कोई रस्सी जल गई पर बल न गया, टांग अड़ाना, रुकावट बनना। हर काम में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है। आंखें बिछाना, नहायत खुलूस से इंतज़ार करना। बाप अपने बेटे के इंतज़ार में आंखें बिछाए खड़ा था। अब इस तरह इस सबक का खुलासा मुकम्मल होगा। बाकी